Next one, physical sign of ecchymosis at flank that points to retroperitoneal bleeding. अगर flank है तो flank पे basically हम turn होते हैं. So remember, this is great turner. We turn on our flanks. So that is great turner. Cullen is C for C in the center. So periumbilical is going to be Cullen sign. Fox sign is in the area of inguinal ligament. वहां पे discoloration हो रहा है. Bryant sign is the blue scrotum. ठीक है, blue scrotum, Bryant sign, which is generally seen with ruptured aortic aneurysm, abdominal aortic aneurysm. ठीक है, तो टर्न करने के एरिया में फ्लैंक्स में इट इज ग्रे टर्नर, सेंटर में इट इज कलेंस, ब्लू स्क्रोटम इज ब्रायंट एंड फॉक्स इज इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, सो दीज आर द एरियाज. Going to next one. I hope everybody is fine with the speed that we are going. सबको समझ में आ रहा है? Yes. Everybody give me a quick thumbs up. ठीक है, everybody is clear with this. Great. नेक्स्ट वन, एक पेशेंट आता है कैजुअलिटी में एक्सीडेंट के बाद, फ्रैक्चर फीमर है, थर्ड डे पे यानी 48 आवर्स के बाद अभी ब्रेथलेसनेस होता है. तो क्लासिकली जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है एंड 2 डेज के बाद फिर ब्रेथलेसनेस होता है, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ फैट एम्बोलिज्म. ओके, फैट एम्बोलिज्म, लॉन्ग बोन में से, बोन मैरो में से फैट निकल के उसका एम्बोलिज्म हो रहा है. सो रिमेंबर दैट इज फैट एम्बोलिज्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस केस. There can be the petechiae on the skin also that can be present. ठीक है, in fat embolism, skin petechiae can also be present. Next one, prevention of emergence of risk factor. मतलब आप risk factor कोई हटा रहे हो, is what level of prevention? Primordial. Risk factor inhibitory is primordial. ठीक है, that is primordial prevention. What do you have in primary prevention? हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. तो वैक्सीन्स वगैरह आती है आपकी प्राइमरी में. सेकेंडरी इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सो द डिजीज इज ऑलरेडी प्रेजेंट. एंड टर्शरी इज बेसिकली रिहैबिलिटेशन. सो रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे हैं, दैट इज प्राइमोर्डियल. बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन मतलब हाइट विल बी अफेक्टेड. एनीथिंग विच इज अक्यूट, सबसे पहले हाइट अफेक्ट होगी कि वेट, उसमें वेट अफेक्ट होगा. ठीक है, वेस्टिंग होगी अक्यूट वाले में, स्टंटिंग होगी क्रॉनिक वाले में. ओके, सो स्टंटिंग, हाइट फॉर एज is what is very important for chronic malnutrition में. स्टंटिंग होगी, acute में wasting होगी. Wasting is defined by weight for height. Okay, weight for height is acute, height for age is chronic. All of the following are example of nominal scale except. Nominal scale means basically आप नाम कर रहे हो. जैसे race, you have namings. You have sex, which has namings. You have socio-economic status, high, middle, low. Right? Body weight is something which is, you don't name it. It's a quantitative variable, right? You actually weigh it, you get a number and it has a unit, 10 kgs, 15 kgs, 20 kgs. So it is quantitative. Nominal scale is qualitative. Okay, you just give the names. Gender ho gaya, right? Sex, so male, female. So this is nominal. When I say mild, moderate, severe, it is what kind of scale? That is the ordinal scale. Okay, so अगर आप order में डाल रहे हो तो ordinal, अगर आप सिर्फ name कर रहे हो तो nominal. So body weight is something which is quantitative, it is not qualitative. Nominal scale. Following are true for normal distribution curve except which of the following? Yes, पता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, बेल शेप होता है, मीन, मीडियन, मोड, यहाँ पे सब सेम होता है बिकॉज देयर इज नो स्क्यूइंग विच इज हैपनिंग हियर. तो व्हाट इज इनकरेक्ट, रूल आउट करके भी आंसर क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0. इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन 0 नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है. ठीक है, कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन तो होता ही है. सो SD is 1, SD is not 0. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट.
learned behavior which is socially acquired, that is customs, ethnicity और culture, that is basically culture. PSM में आपके से one liner, fact based रटने वाले आते हैं. So remember this is what is culture. Culture मतलब जो हमने socially acquire किया है, behavior जो learn किया है, that is culture. Okay, that is culture. Incineration is not done for sharp waste. Incineration is something जो हम करते हैं जैसे जो येलो वाले में डालते हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, प्लासेंटा, ड्रेसिंग मटेरियल्स, येलो डर्टी फेलो. सो जो डर्टी वाला है उसको हम इंसिनरेट करते हैं. शार्प वेस्ट डज नॉट गो इनटू येलो. व्हाट डज शार्प गो इनटू? रिमेंबर शार्प लाइक टीथ, सो दैट गोज इनटू white. Okay, it goes into a white container. उसका इंसिनरेशन नहीं होता है. येलो वाले को हम इंसिनरेशन करते हैं. ठीक है. Subclinical infection is seen in all except. So basically, they are asking you that which disease does not show the iceberg phenomenon. है ना, iceberg क्या होता है? Tip of iceberg दिख रही है, but बहुत सारे cases subclinical है. कौन सी डिजीज है जिसमें ये आइसबर्ग फिनोमेनन नहीं होता है? मीजल्स में नहीं होता है. रिमेंबर MTR. ठीक है, MTR का जैसे मसाला है. सो यू हैव मीजल्स, टेटनस एंड रेबीज. ठीक है, टेटनस होगा, सीवियर होगा. रेबीज का केस कोई सबक्लिनिकल केस नहीं होता है. इट हैज 100% केस फैटेलिटी रेट इज रेबीज. सो रिमेंबर इनमें सबक्लिनिकल इन्फेक्शन नहीं होता है. ठीक है, सो मीजल्स, M फॉर मीजल्स. ओके, M फॉर मीजल्स also does not have subclinical infection. Which biosafety level is required for handling of viral specimens of SARS-CoV-2? So यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली आपको हैंडलिंग बोला है जैसे ब्लड स्पेसिमेन वगैरह या कोई भी, तो उसके लिए यू कैन गो फॉर BSL-2, बायोसेफ्टी लेवल 2. बट अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन होता कि हम जहाँ पे वायरल कल्चर कर रहे हैं, सो देन यू विल गो फॉर BSL लेवल 3. तो अगर आप जैसे ब्लड सैंपल्स वगैरह वो सिर्फ हैंडल कर रहे हो तो BSL-2. बट अगर हम वायरल कल्चर कर रहे हैं तो उसमें और ज्यादा लगेगी, दैट इज गोइंग टू बी BSL-3. ओके, दैट्स गोइंग टू बी BSL-3.